Let's begin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Today, inshallah, we will start with tayammum, which is dry ablution. So far, पिछला जितना हमने कवर किए उसमें कोई किसी को कोई डाउट्स है, कोई क्वेश्चंस है? So you can ask now. Anything? Any question from the previous sessions? If not, then we will proceed, inshallah. Nothing? Chalo, good. Which means things are clear. Okay. Tayammum. What is meant by tayammum? Okay. Alhamdulillah, all doubts cleared. Okay. As per Surah number 4, verse number 43. And if you are ill or on a journey, or one of you comes after answering the call of nature, or you have been in contact with women and you do not find water, then perform tayammum with the clean earth and rub therewith your faces and hands. Truly, Allah is ever pardoning and oft forgiving. So, dry ablution is also called tayammum. In case of if you are ill or if you are in a journey and you cannot find water, or if there is a shortage of water, so the option left is that we do dry ablution, but we don't miss our salah. ये एक उस चीज की भी दलील है कि सलाह की इम्पोर्टेंस देखिए आप कि पानी ना होने की वजह से आपको अपनी सलाह तर्क करने का हुक्म नहीं है, but there are solutions that you can use dry earth and inshallah आपका purification का जो अरकान है वो पूरा हो जाता है. Now what are the steps for it? One is intention in one's heart to have the niyyah. As you all know, all our deeds are intention based. So the first and the foremost is having intention. Second is to say Bismillah. Okay. Third is to strike dust once with two hands. यानी उसके ऊपर आपके जो open palms हैं, you strike it once with the two hands. Then to wipe one's face with the two hands. यानी हाथ palms जो आपके dust पे आपने strike किए, फिर आपने अपने face को वो दोनों हाथ से rub किए. Just once. यानी एकदम literally नहीं है. It is just a light rubbing once. उसके बाद to wipe the exterior of the right hand with the interior of the left hand, and then to wipe the exterior of the left hand with the interior of the right hand. इसकी मैं आपको फोटो I will just share it, स्क्रीन पे शेयर करती हूँ तो इंशाल्लाह you will have a better idea, but it is quite simple. 1 minute. I think somebody is finding it difficult to enter. Password is 346343. I don't know why she is not able to enter. Please mute your mic, Aisha. Okay. I'll be sharing my screen with the image of tayammum. Okay. Till then, we will continue. वापस मैं रिपीट करती हूँ. एक बार आपने डर्ट पे स्ट्राइक करना है, दोनों पाम आपके, फिर आपको आपके फेस को वाइप करना है, फिर आपको आपके राइट हैंड के एक्सटीरियर को लेफ्ट हैंड के इंटीरियर से, यानी लेफ्ट हैंड के पाम से आपके राइट हैंड के
ऑपोजिट साइड, यानी जो बाहरी हिस्सा आपका जो हाथ है उसको वाइप करना है, एंड देन द एक्सटीरियर ऑफ द लेफ्ट हैंड विद द इंटीरियर ऑफ द राइट हैंड. बस यही आपका स्टेप्स हैं. Situations when tayammum is performed as an alternative to ablution with water, जब पानी ना मिले या पानी का यूज करने से आपको नुकसान हो. ठीक है, तो दिस आर द कंडीशन. तयम्मुम नलिफाई किन किन एक्शन से होता है, किन चीजों से आपका तयम्मुम जाया हो जाता है. तयम्मुम इज नलिफाइड बाय द सेम थिंग्स दैट नलिफाई अब्लूशन, यानी जो वुदू के हमारे जो नलिफायर्स थे वही सेम टू सेम नलिफायर्स फॉर तयम्मुम भी है. द प्रेजेंस ऑफ वाटर इवन ड्यूरिंग प्रेयर, यानी फॉर एग्जाम्पल आप डेजर्ट में हैं एंड वहां पर पानी नहीं है, नमाज का वक्त हो गया है, आपने डस्ट में, रेत में आपने तयम्मुम कर लिया. अब आप नमाज पढ़ने जा रहे हो और उसके पहले आपको मिल गया. एक मिनट ना, थोड़ा पास में जूम मीटिंग चलती. जब आपको वो पानी मिल जाता है तो आपका तयम्मुम नलिफाई हो जाता है, यानी बिफोर सला अगर आपको पानी मिल जाता है तो आपका तयम्मुम नलिफाई हो जाता है. यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? यानी जब तक के पानी मौजूद नहीं है तब तक के आपका तयम्मुम इंटैक्ट है. द मोमेंट तयम्मुम आपका पानी अगर अवेलेबल हो गया है फॉर वुदू, देन योर तयम्मुम इज नलिफाइड. ओके, कोई मुझे इसकी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एक्सप्लेन कर सकता है? आई एक्सप्लेन यू 4 स्टेप्स. ठीक है, अब आप मुझे क्विकली तयम्मुम की 4 स्टेप्स एक्सप्लेन करें, वन ऑफ यू, और वन बाय वन, व्हाटएवर स्टेप्स यू से. हाँ जी. आप हाथ मिट्टी में डाल के हाथ झाड़ोगे, मतलब साफ करोगे ताकि मिट्टी झड़ जाए. नहीं, you just have to strike it once and then yeah. फिर आप अपने हाथ साफ करोगे, बल्कि मतलब झाड़ोगे जैसे मिट्टी उतर जाए. Okay. राइट. हाथों को आपस में साफ करोगे पहले. हाँ, नहीं, आपको वो सीधा जो है ना, यानी you pat it on the sand and then just strike it one time, wipe your face and then your right hand ka interior on the exterior of the left hand and left hand ka on the right hand. That's it. It's very simple. जी हाँ जी, इज इट क्लियर? अब नलिफायर्स ऑफ तयम्मुम क्या होंगे? नलिफायर्स, ऑल द नलिफिकेशन स्टेप्स जो आपके वुदू के नॉर्मल वुदू वाले जो हैं वो, प्लस 2 स्टेप्स ये है कि पानी अगर आपके पास आ जाए तो आपका तयम्मुम नलिफाइड हो जाता है. अभी एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं कि जैसे आपने तयम्मुम किया और आपने सला नमाज अदा कर ली, मिडल ऑफ द सला में आपके पास पानी आया, तो डू यू रिपीट योर वुदू एंड योर सला, और व्हाट डू यू डू? डिड यू गेट माय क्वेश्चन? आपने तयम्मुम किया, आपने नमाज स्टार्ट की, एंड देन समझो फॉर एग्जाम्पल आपने 2 सुन्ना पढ़ ली, व्हाटएवर, या आपने अपने फर्द पढ़ लिए फॉर एग्जाम्पल, एंड देन पानी अवेलेबल हो गया. तो माय क्वेश्चन इज व्हाट यू विल डू? विल यू रिपीट योर सला or you will not repeat your salah, or you will do wudu and perform the remaining salah? Answer me please with reasons. हाँ जी, anyone attempting? Can't unmute? Wait, I don't know why you are not. मैंने तो free रखा हुआ है. Okay, unmute all. चलें, जिसको आंसर करना है करें प्लीज. जी आपका वुज़ू जी, वन बाय वन. अगर आपके पास पानी आ जाएगा, then you have to do the wudu and you will continue where you left. Okay, this is one opinion. Number 2, और कोई क्या कहना चाहता है? You said continue. हाँ, same. Any other opinions?
Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू जी. I feel that you have to finish the salah, then you have to go for the next wudu. You are saying you have to finish your salah and then go for the wudu. Whereas Yes. in the nullifiers steps, I have told you, okay, your tayammum will be nullified if the water is made available. Then how can you? But while we are doing salah only now, we are getting the water. We cannot leave that salah and go, no? No. Salam, after you say taslim, then you can go, no? That's what I'm saying. Salam pherne ke baad, salam pherne ke baad, you can go and do the wudu. Salam pherne ke baad, you can go and do the wudu. Okay, will you be repeating the salah is my question, the second part. No, I don't think so. It has to be repeated. I don't think so. It has to be repeated. Okay, any other opinions we have? और कोई ऐड करना चाहता है? Then I'll tell you okay, what is the ruling. We are done? Yes, Baji. We don't have any idea. Okay. Actually, yes, Saima, you want to ask anything? Saima and Humaira has raised their hands. Humaira, you have to ask something or add something? Who is that? Maybe they can't hear you, Baji. Or they can't unmute. Yeah. Okay, let me unmute them. Yes, Humaira. Oof, I'm not able to unmute her also. Very good. Yes. Yeah. Assalamu alaikum. I think you don't have to repeat the salah. You don't. So most of you think you don't have to repeat the salah. But the scholarly opinion goes like this. They say it is valid that you don't repeat your salah, but you should do your wudu as soon as the water is made available. And there is an extra ajr for someone who does the wet wudu with the water and repeats the salah. Scenario समझ आ गया? यानी even if you don't repeat, आपने तयम्मुम से एक जो 2 रकातें पढ़ ली हैं, it's okay, valid, acceptable. जैसे ही पानी आ गया, आपने तस्लीम किया, आपने wet wudu कर लिया, अपना normal regular wudu कर लिया. Then you continue from where आपकी सलाह रहती है. This is one scenario and it is acceptable. The second strong opinion is that it is better कि once you get the water available and then you repeat your salah, उसमें extra ajr है. So both the scenarios are acceptable. Clear? Okay. All right. Which of the following will nullify a tayammum? Eating, drinking, sleeping. Anji. Which of the following will nullify the wudu? Eating, drinking. Okay, and everything that nullifies the wudu will nullify the tayammum. ये 3 कैटेगरी में से बताएं. Sleeping. Which sleeping? Deep sleep. Okay. Tayammum is prescribed when there is, number 1, absence of water, severe heat, or heavy rain. Absence of water. Absence of water. Okay. Is it okay? Abhi ek aur ek question. If at all somebody is having a bandage on the hand, probably, so can the person do the wet wudu with wiping the hand over the bandage? Yes, they can. So is tayammum better option or wiping on the bandage is a better option? If water is available, obviously wiping is a better option. Okay. यही एक्चुअली मुझे इसका ना यानी समझना है कि आप लोग इस चीज को आप समझे कि wiping if water is available, wiping over the bandage is okay, but under normal this thing otherwise अगर water use करना threatful है तो फिर आप तयम्मुम की तरफ resort करेंगे. Clear? Will eating camel meat nullify my tayammum? Yes. Yes. Why? Yeah, Humaira, बोले.
I'm unable to unmute. I don't know what's going on today. Unmute all. जी, हुमैरा आप कुछ बोल रही थी? Yes, it will not break your wudu. It will not break the wudu. Did you say camel meat Yes. will not break the wudu? Yes, Camel meat will break the wudu. It will break. Very will break. You didn't attend yesterday, Humaira? No, I didn't attend yesterday. That is the reason. I want somebody who attended I can't unmute myself and I mute it. No problem. I don't know why. Okay, no problem. I don't know. There is something going on today. And Something funny. And I can't. And there are so many voices coming. I don't know from where. Okay. Actually, I will mute one by one. Okay. Can someone explain why? I mean, will eating camel meat nullify the wudu? जैसे कि आपने बताए थे उसमें शैतानी जो है आपने बताए थे बहुत रहते हैं ऐसा कुछ नहीं या बाजी आई थिंक तो सही है ना हाँ मतलब फर्स्टली तो ईटिंग कैमल्स मीट विल नलिफाई द वुडू एंड ड्रिंकिंग कैमल्स विल नलिफाई नहीं करेगा व्हाई कैमल्स मीट को कहा गया है कि इट विल नलिफाई योर वुडू इज बिकॉज कैमल के एवरी कैमल हैज अ डेविल सिटिंग ऑन इट्स बैक उसके अंदर थोड़ी सी शैतानी डेविलिश स्ट्रैंड है इट्स वेरी एग्रेसिव एंड स्टबर्न एंड थिंग्स लाइक दैट एंड thirdly is कि of course there is a hukum so that is what we follow and it is very heaty so to nullify that effect we have to repeat the wudu after eating camel's meat ठीक है तो definitely if wudu के nullifier में है कि eating camel's meat will break the wudu similarly tayammum में भी it will nullify the tayammum all right okay there is a question if you are reading salah in jama and miss the second rakah do you have to pray all over again ये salah वाला question है inshallah when we come to that then we will do it वैसे आप ये question अगर group में डालेंगे तो I will inshallah send you details हाँ okay ये tayammum के related जो है अगर कोई question है या कुछ है then we can discuss it otherwise I will proceed to ghusl okay No, Baji, we don't have any doubt. This is very simple, tayammum. Yeah, it is very simple and just for your information, dry जो dust और sand होती है ना वो ही use की जाती है हाँ तो you just strike your hands, dust them off क्या करते हैं मतलब कई बार ना उसको ऐसे blow कर देते हैं हाथ में जो एक्सेस डस्ट उसको ब्लो कर देते हैं एंड देन अपना फेस और हैंड्स को वाइप कर लेते हैं इसकी ना एक ऐसी वो भी मिलती है यानी बाकायदा सऊदी में भी और यहाँ पर भी काफी सारी इस्लामिक बुक शॉप्स वगैरह में वो तयम्मुम का वो कार्डबोर्ड मिलता है उसके अंदर मड होती है और वो ऊपर से उसके कवर होता है तो जस्ट आपको वो कवर ओपन करना है और अंदर दोनों पाम्स अपने रख के इट्स अ वेरी गुड तयम्मुम के लिए हैंडी है आप यानी जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू आर फ्रॉम द प्लेस जहाँ पर ये सैंड या डस्ट या ये ड्राई मड ना मिलती हो तो ये अपने साथ आप कैरी कर सकते हैं या अपने रिलेटिव्स को गिफ्ट भी कर सकते हैं और दूसरा ये कि इट इज समथिंग जैसे कि हम लोगों के लिए जैसे मैंने कहा कि ये एक बहुत बड़ी दलील है कि हमारे लिए सलाह कितनी इम्पोर्टेंट चीज है कि अंडर व्हाटएवर सर्कमस्टेंसेस पानी है ना है वी हैव टू प्यूरिफाई आवरसेल्व्स एंड देन सलाह हमने हमारी कंटिन्यू करनी है तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर बट हमें तरीका आना चाहिए कि कैसे कहाँ क्या करना है तो मैं आपको यही अर्ज करूंगी कि आप जो भी यहाँ पर सीखें अपनी फैमिली के साथ अपने रिलेटिव्स के साथ डिस्कस करें और सबके जो भी मिसकंसेप्शंस हैं उसको क्लियर करें उनके अगर कोई डाउट्स होते हैं अपने तरफ से कोई जवाब कोई फतवा प्लीज जारी ना करें डोंट डिक्लेयर एनीथिंग हराम एंड हलाल वी विल कम बैक डिस्कस रिसर्च एंड देन कम टू अ कंक्लूजन एंड एस्टैब्लिश इट ठीक है दैट इज हाउ एक तरीकाकार रहेगा हमारा गोइंग टू द सेकंड part which is ghusl tayammum ke related I think alhamdulillah we have cleared everything so far it is a very simple thing अब हम आते हैं ghusl की तरफ ओके ghusl के अंदर काफी सारी चीजें in regards to tahara हमारी क्लियर हो जाती है ओके somebody is saying unmute all and then आप लोग अपने तरफ से वो करें Okay, Mubina and Farheen, question? Yeah. जी बाजी जी
अगर हम ऐसी जगह रहते हैं जहाँ हमको मिट्टी भी नहीं मिलती और पानी की भी सहूलत नहीं रहती, तो हम कैसे करें तैमम? नहीं देखें, डस्ट जो है ना, डस्ट सुभान अल्लाह एक ऐसी चीज है जो हर जगह पे मौजूद होती है, हर कंट्री में, हर टेम्परामेंट में होती है, राइट? डस्ट, नॉर्मल डस्ट। तो डस्ट जो है यानी कहीं ना कहीं से आपको डस्ट तो जरूर मिल जाएगी, मिट्टी भी नहीं मिल रही, पानी भी नहीं मिल रहा, सिंपल डस्ट आपको कहीं पे भी मिल जाएगी। यू कैन स्ट्राइक योर हैंड्स ऑन द डस्ट। बाजी कुछ लोग ऐसा करते हैं और चॉकपीस रहता है ना, उसको जी वॉल पे रब करके उसे यूज किसमें? करते हैं, क्या नहीं वो मेरे कर समझ नहीं आई सकते? मुबीना। चॉकपीस रहता है ना, चॉकपीस? जब हम जो ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं, चॉकपीस। चॉकपीस, चॉक तो बहुत, यानी चॉक का पाउडर करके फिर उसके ऊपर ऐसे करते हैं, हाँ। दैट इज व्हाट यू आर सेइंग? यस यस, नहीं लोग ऐसा करते हैं, क्या वो कर सकते हैं? बट चौक क्यों चाहिए आपको जब डस्ट मौजूद है तो? और चौक का क्या मतलब, यानी आई डोंट रियली अंडरस्टैंड, चौक से कैसे? नहीं चौक इज बाजी, कैल्शियम। ऐसा नहीं है बाजी, अब किसी की तबीयत खराब है, वो तो पानी नहीं यूज कर सकते हैं, हाँ, तो डस्ट जो तो है वो जब तो इजीली अवेलेबल है ना? घर की चटनी पता नहीं वो डस्ट क्या नीट होगा, मतलब अच्छा रहेगा या नहीं तैमम के लिए, नहीं, मैं ऐसा वही तो सोच के वो मैं लोग। वही समझना चाह रही हूँ कि क्यों यानी हमारे पास डस्ट तो लाजमी कहीं पर भी मौजूद रहती है ना, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, लेकिन चौक का खास इस्तेमाल क्यों? दैट इज व्हाट माय क्वेश्चन इज। एंड चौक इज यानी चौक को पाउडर करके एंड देन आई डोंट अंडरस्टैंड, बट आई विल चेक दिस डेफिनेटली, लेकिन आई एम नहीं, स्टिल उनको मिट्टी नहीं मिलती ना बाजी, तो ऐसी हालत में। मुझे एक बात बताओ, डस्ट मिलती है? डस्ट 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 मिट्टी सब एक ही है ना? या बट चौक यानी डस्ट इज मच मोर बेटर, नहीं? धूल यानी धूल, धूल तो हर जगह पर होती है ना। धूल, यस। देखें, अर्थ, डस्ट, मड, रॉक, सैंड, क्ले, क्लीन अर्थ होनी चाहिए, बस क्लीन अर्थ। मैंने कभी ये अच्छा। चौक का कभी सुना नहीं, एक्चुअली फर्स्ट टाइम सुन रही हूँ। तो यानी कोई स्पेसिफिक वो है उनका, कुछ बिलीफ सिस्टम है या स्पेसिफिक उसके लिए कुछ वो है कि इससे क्लेंजिंग ज्यादा अच्छी होती है, या इजीली अवेलेबल है, या ऐसा कुछ है? नहीं बाजी, इजीली अवेलेबल है, क्योंकि बाहर की मिट्टी पे उन लोगों को भरोसा नहीं रहता, हो कहाँ पे गंदगी है, कहाँ पे बच्चे जाके यूरिन कर दिया, ऐसा वैसा। अच्छा तो अच्छा। पानी में वो लोग वुजू नहीं कर सकते, क्योंकि मतलब हेल्थ प्रॉब्लम कुछ होता है ठंडी में, ऐसा। सी एक्चुअली ना देर इज व्हाट यू कॉल, ये हमारी ना आसानी के लिए, यानी ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है कि हाँ। मट्टी को मुंह पे और हाथ पे रब करना है। बाय द वे, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, डस्ट इज वन ऑफ द डिसइंफेक्टेंट। हाँ, डस्ट के बारे में काफी रिसर्च हुई है। तो धूल इज नॉट समथिंग दैट विल गिव यू इन्फेक्शन, बट अगेन इट इज कंडीशनल। लेकिन लाइक फॉर एग्जाम्पल जो अबू हनीफा एंड मालिक, इनकी जो व्यूज हैं वो ऐसा है कि तयम्मुम कैन बी डन विद डस्ट, सैंड, पेबल्स, ये प्लास्टर्ड वॉल, क्ले, जो भी चीज ऐसे प्योर मड की बनी हो ना, तो उससे हो जाता है। यानी आप ऐसी कोई भी जगह पे देखें, ऐसे कपड़ा फटका मारो तो वो जो मिट्टी या धूल उड़ती है, दैट इज गुड इनफ। ठीक है? अच्छा अच्छा, तो ओके बाजी, क्लियर है। तयम्मुम आप ये सारी चीजों से भी कर सकते हो। यानी अभी आपने जो एक खास किस्सा बताया कि कोई बीमार है और उसका आपको डर लग रहा है कि उसको इन्फेक्शन हो जाएगा, तो मसलन उसने जी। अपने वॉल पे हाथ स्ट्राइक किया, उसमें से थोड़ी सी हल्की सी धूल निकल गई, इवन दैट दे हैव सेड इट इज वैलिड। जी, ठीक है? ओके बाजी। थोड़ी सी भी डस्ट हुई ना, मिशन अकम्प्लिश्ड। जी, ओके बाजी। ठीक है? और बाकी अल्लाह नोज द निया। तो इससे तो हमारा वो यानी इम्प्योरिटी निकालने का मकसद नहीं है ना, यानी अभी डस्ट से हम लोग कोई नजासा का चीजें नहीं निकालेंगे, मगर ये एक आसानी की गई है इन केस ऑफ इनअवेलेबिलिटी या इन केस ऑफ नॉन कैपेसिटी हमारी, कि भाई बीमार है तो पानी हमारे लिए हार्मफुल है, उस अंडर दैट सर्कमस्टेंसेस। तो ये जो है, इट इज जस्ट अ स्मॉल लीनियंसी फॉर अस कि भाई हमने स्टेट ऑफ प्यूरिटी हासिल कर ली है, बट एक्चुअली दिस इज नॉट लिफ्टिंग the ritual najasa, right? तो there is no problem. ठीक है ना? जी बाजी। हाँ जी। पेंटेड वॉल की रूलिंग ये है कि अगर उसके ऊपर यानी डस्ट हो तो ठीक है, अगर वो एकदम क्रिस्टल क्लियर विदाउट एनी डस्ट है, देन इट इज नॉट वैलिड, यानी थोड़ी सी धूल होना जरूरी है। समझ आ गया? All right. Farheen, you have to say something?
Yes, yes, yes. बोले I would फरीन. like to जी add फरीन. with regards to camel meat. आवाज नहीं आ रही तुम्हारी. One second, one आवाज नहीं आ रही फरीन. second. आ, अभी आ रही? हाँ हाँ अभी ठीक है बोले. अभी आ रही है? जी 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 अभी बोले. Yeah. I would like to add that with regards to camel's meat, सिर्फ मीट ही नहीं, but even the gravy, it also nullifies the wudu. Right. Very good. Jazakallah khair. So it's Yeah. only that camel milk पिए तो आपको nullify नहीं होता, but gravy and उसकी meat और उसका यानी खाने वाला कोई भी जो है उसका जो matter है उससे wudu will get nullified, and of course even tayammum for that matter. ठीक है ना? अच्छा, there is another question which is there in the chat box के what about walls chalk becomes a chemical. वो actually again that I discussed regarding, again I'll repeat, actually let us repeat this because थोड़ा सा इसमें लोगों को confusion लग रहा है. It is permissible to do tayammum with anything that is from the earth. According to Abu Hanifa and Malik, in their view, it is valid to do tayammum with dust, sand and pebbles. Abu Hanifa regarded this as permissible to do tayammum with smooth rock surface, plastered walls and clay made from pure mud. So whichever place where you can strike and the dust rises, that is valid and permissible. Okay? And especially in the case of a sick person, Sheikh Ibn Uthaymin radiallahu anhu says that he can do tayammum by striking his hands on the wall. तो कहीं पे भी हाथ मारे, हल्की सी धूल उड़ी, that is good enough. A small amount of dust will do. Is that clear now? In regards to chalk, it is also kind of a natural, I would say it would come under the category of earth and clay. Maybe that is also allowed, but I have not seen yani directly the use of chalk. मैंने first time सुना है जैसे आपको बताया. तो inshallah, if I get a chance, I will check and dig in. But as per what the text says, any form of rock, mud brick, earth, clay, dust is allowed. ठीक है? So we are clear on this part. Can we proceed now? All right. Coming to the ghusl. Allah says in Surah Al-Ma'idah, Surah number 5, verse number 6. If you are in a state of janaba, state of sexual impurity, then purify yourself. So what is ghusl? Ghusl is to wash the whole body with water in a specific way. The cases for which ghusl is obligatory, यानी वो सारे मौके जब ghusl obligatory status है, फर्द है, important है आपके लिए. State of janaba, state of impurity after having sexual intercourse or after having ejaculation of semen or the release of orgasmic fluid for women. Yani at any given point of time, okay, the ayah is Surah Ma'idah, Surah 5, verse 6. All right. Oh, I did it privately. 1 minute. Yeah. So if you are in a state of janaba, which is after the orgasm, when the fluid is ejaculated either from men or from women, then you definitely need a ghusl. After a non-Muslim, he will embrace Islam. जब कोई non-Muslim शहादा लेकर इस्लाम में दाखिल होता है, तो उनको लाजिम है कि वो ghusl करें. Ceasing of menses or postpartum bleeding. After your monthly menstruation gets over or post nifas, delivery के बाद की जो bleeding from 1 week to 40 days के अंदर जो होती है bleeding postpartum, post nifas के बाद भी आपको ghusl करना जरूरी है. And when a Muslim dies, it is obligatory on Muslims to give him a ritual bath. तो ये 4 conditions हो गई जब ghusl वाजिब हो गया. I'll repeat it again. After the state of sexual impurity, where the male have ejaculated the semen or the release of orgasmic fluid for women.
Second, a non-Muslim upon embracing Islam. Number 3, ceasing of menses or postpartum bleeding. And number 4, death. When a Muslim dies, it is obligatory on other Muslims to give him a ritual bath. Okay? So it is quite clear that when are we supposed to have bath before we start any of our ibadah. And if you are in a state of impurity, आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आप जल्द से जल्द state of purity में आ जाए. It is good to be in a state of purity as early as possible. Okay. The manner of performing ghusl. I covered the Prophet ﷺ whilst he washed himself from sexual defilement. He started by washing his hands and took water with his right onto his left hand. Then he washed his private parts and that surrounding it. Then he hit his hand on the ground. Then he made wudu like he would for prayer. Then he poured water on his body, one on the right, one on the left, one on the head in the middle. Then he moved a bit and washed his legs. So again, the summary of ghusl would be intention, wash the hands, wash the private parts, make wudu, wash the head with 3 scoops of water, wash the rest of the body, starting with the right side, and wash the feet. Okay. स्टेप्स के अंदर किसी को कोई इशू है? जो अभी हमने स्टेप्स डिस्कस किए उसके अंदर कोई इशू है? Can someone repeat the steps? Because I want this to be repeated and then आपके memory में बिल्कुल freeze हो जाए. I know this is something which is very common and we are doing it. Maybe we already know it. Maybe we have been missing something. But it's better to again repeat it and establish it, confirm it. तो आप में से कोई are you able to unmute? Wait, I'll unmute all now. Yeah. Reply करें कोई. Tell me the steps. Okay, Niya. Okay. Niya, then washing hands, Yes. then private parts, Yes. then wudu. Okay. Take 3 scoop of water, sir pe dale. Then the right side of the body, and then the 3 scoops on the head, and then you have to comb through your fingers through the scalp, that it reaches the roots. Okay. When you put the scoopful on the head with the fingers, you have to ensure it reaches the roots. Okay, then pour water on the right side of the body. Yeah, on the body, right side. Right side and then left side and then the feet. Clear? Yeah. Okay. Can somebody tell me what are the forbidden acts during Janaba? Forbidden prayer. Forbidden prayer. Okay. Prayer and Quran, reading Quran and entering the mosque. Okay. And Tawaf, Hajj. Yes, very good. Tawaf and then Hajj. I think that's all. That's all, huh? Yani touching the Quran, reciting the Quran, Yes. prayer, tawaf, and staying in the mosque. ठीक है. अगर आपकी जैसे फॉर एग्जांपल देयर इज अ हदीस इट सेज कि आपकी बाल जो है वो लंबे हैं और आपने बड़ी मुश्किलों से टाइट चोटी बांधी हुई है. माय क्वेश्चन इज विल यू बी अनटाइंग योर ब्रेड? नो. हाँ जी बताएं. क्योंकि इसकी हदीस सुनी हो, अगर हमारे बाल लंबे हैं तो हमको बंधे हुए बालों पे ही हम गुस्ल ले सकते हैं. Okay. Somebody is saying, please repeat the steps. Disturbance tha, so I'm repeating the steps and we'll come back to this question. Okay.
description of a valid ghusl is intention. The intention is, okay, that he is performing ghusl to remove himself from the major state of impurity. यानी आपकी निया ये है कि आप अपनी बॉडी पे से मेजर स्टेट ऑफ इम्प्योरिटी खारिज करना चाह रहे हैं. Then what do you do? You're washing the whole body, including rinsing the mouth and nose. So how do we begin? We begin with washing hands 3 times. हम अपने हाथ 3 टाइम धोएंगे. हम अपने प्राइवेट पार्ट्स धोएंगे. उसके बाद हम प्रॉपर कंप्लीट वुदू के स्टेप्स जो है वो करेंगे. फिर हम उसके बाद 3 स्कूप फुल ऑफ वाटर अपने हेड पे डालेंगे और उसको हम रूट्स तक के पहुंचे तो हम कोम करेंगे अपने फिंगर्स के साथ ताकि पानी हमारे जड़ों तक जाए, बालों के, स्कैल्प के. एंड देन पोर वाटर ओवर द रेस्ट ऑफ द बॉडी बिगिनिंग विद द राइट साइड एंड देन लेफ्ट. यानी अच्छी तरह से पानी बहाएंगे हमारे फुल बॉडी पे, राइट साइड से बहाते हुए फिर लेफ्ट साइड पे, एंड एंड में हम उसको फीट को वॉश करेंगे. ठीक है. अभी मेरा क्वेश्चन था कि अगर किसी की टाइट चोटी है, ब्रेड्स हैं, तो क्या उनके लिए नेसेसरी है कि वो खोलें या when we are doing the scoopful thing only that will do? So we have a backing of one of the wives of Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam who asked this question, and he said that no need to open it. You can put the scoopful of water and then comb through the roots. ठीक है? Clear? Yes. All right. उसके बाद when मवाक़े कौन से हैं जब it is recommended to make ghusl, when it is recommended. हाँ, अभी recommended आपको पता है अच्छी तरह से, मसलन not obligatory but मुस्तहब, recommended. हाँ, तो आपको फर्क अभी समझ आ जाना चाहिए. When I say it is obligatory, when I say it is recommended. So places where it is recommended on Friday, ठीक है, जुमा के टाइम पे it is recommended, मुस्तहब. For ihram, when you are entering ihram, on entering Makkah, for istihada, prolonged bleeding जो नहीं होती है, वो बीमारी की वजह से जो होती है, prolonged bleeding, for istihada, after each intercourse. मसलन ये भी एक मुस्तहब वे है कि for example when you are in a state of janaba, तो between the janabas you take a bath. यानी for example, I'm talking about in a particular one day, if the intercourse is happening say twice, and between that span for each session you'd make a ghusl, it is mustahab, not obligatory. Then after washing a dead body, even this is mustahab, not compulsory. कि किसी ने अगर किसी dead body को ghusl दिया है तो उसको, इसमें बहुत सारी opinions थी actually, but the mustahab opinion is that you can take a bath. And for Eid prayer, again this is mustahab, not compulsory. Are we clear on this? I'll repeat again. Yes. When it is recommended to make ghusl, recommended मानी mustahab वाली उसकी डिग्री है. On Friday, जुमा के दिन, before Salatul Jummah of course, for ihram, on entering Makkah, for istihada, which is the prolonged bleeding, after each intercourse. ये वाला पॉइंट थोड़ा क्लियरली समझाओगे बाजी? कौन सा पॉइंट? आफ्टर ईच इंटरकोर्स बोल रहे हो आप? Okay. आप एग्जांपल बोलते no problem. No problem, Nazia. See, कई बार ऐसा होता है ना कि like for example, यानी आपने एक बार आपका सेक्सुअल इंटरकोर्स हो गया, ओके, आफ्टर इजैकुलेशन, फिर उसके बाद आप सो गए और उसके बाद फिर वापस से सेकंड टाइम सेम ड्यूरेशन में ही सेकंड टाइम इंटरकोर्स होने जा रहा है. यानी एक ही सेशन में आपके 2 बार इंटरकोर्स होने जा रहे हैं. तो इट इज ओके टू टेक ओनली वन टाइम. आप उठ के फिर आप बिफोर योर सला आप गुस्ल ले रहे हैं, दैट इज ओके. बट व्हाट इज मुस्तहब इज कि एक बार आपका इंटरकोर्स हो और फिर आप उसमें तहारत आपने हासिल कर ली और फिर उसके बाद दोबारा आपका हो, राइट? यानी वो रेकमेंडेड है, कंपलसरी नहीं है, ऑब्लिगेटरी नहीं है. बट मुस्तहब स्टेटस क्या कहता है कि यू जस्ट विद ईच सेक्सुअल इंटरकोर्स आप तहारत हासिल करें. ओके, ठीक है. हाँ, दिस इज जस्ट यानी वन ऑफ द मुस्तहब केसेस. इसमें अपने आप पर बोझा डालने की कोई जरूरत नहीं है. हाँ, ओके, ठीक. सो गुस्ल के रिलेटेड चंद वर्सेस फ्रॉम सूरत अल बकरा.
Ayah number 222, 222. Due to the verse, they ask you concerning menstruation. Say that it is a harmful thing, therefore keep away from women during their menses and go not unto him until they are purified. And when they have purified themselves, then go to them in the way you have been permitted by Allah. Verily Allah loves those who turn unto him in repentance and loves those who purify themselves. ठीक? So again, if you have ejaculated, ghusl has to be done. After sexual intercourse, ghusl has to be done. Now, I have a question here. If a man were to sit between her limbs and the two circumcised parts meet, तो क्या shower ghusl obligatory है कि नहीं? आप मेरा question समझें फिर से? If a man sits, yes, sorry, हाँ जी. जी, कहाँ तक सूरह सुना? बकरा की आयत बोले आप, उसके बाद में कुछ नहीं सुनाई दिया बाजी. अच्छा, मैं एक्चुअली उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रही थी एंड आई हैड आस्क्ड दिस क्वेश्चन कि अगर if a man were to sit between her limbs and the two circumcised parts meet, then a shower obligatory है कि नहीं है? मसलन कि अगर प्राइवेट पार्ट्स टच हो जाए, हाँ, तो क्या शावर गुस्ल वाजिब है कि नहीं? बिना सेक्सुअल इंटरकोर्स के, जस्ट अगर प्राइवेट पार्ट्स टच हो जाए तो क्या गुस्ल वाजिब है कि नहीं? ओके, वाजिब है. यस, आई एम गेटिंग रिस्पॉन्सेस. हाँ जी. आई थिंक नहीं है बाजी. गुस्ल के वाजिबात हमने ऑलरेडी बता चुके हैं कि किन हालात में गुस्ल लेना चाहिए. तो टच का कहीं मेंशन नहीं हुआ है. ऐसा, आर यू श्योर? हाँ, टचिंग हुआ है. अगर कुछ निकला है तो हमको लेना चाहिए, वरना नहीं लेना चाहिए. क्लियर करो बाजी. हाँ, और मैं एक्चुअली वो रिस्पॉन्सेस वेट कर रही हूँ. Some people are still typing. Okay. हाँ जी. As per the hadith, अगर private parts touch हो जाते हैं, then you have to make ghusl. So those who answered yes, you're right. There is a hadith. So, okay, she's unable to unmute. Wait, some people want to answer more. Unmute all. Okay, guys, I've unmuted now. जी. जो जवाब नहीं दे रहे वो अपने आप कर सकते हैं. There is a hadith which says Prophet Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yes. अगर आप to one sahaba for the purpose of if you touch one by one. एक मिनट, सब लोग एक साथ बोल रहे हैं, समझ नहीं आ रही है. One by one, please. हाँ जी, बोलें. One by one. If you touch yourself for the purpose of enjoyment, that is called masturbation. You have to do wudu. अगर आपकी intentions are not pure, देखिए आपका वुजू टूट जाएगा, लेकिन गुस्ल तब जरूरी है when you touch yourself for the purpose of pleasure. That is wrong. नहीं, see, I will tell you one thing, girls. जब भी मैं कोई ऐसा question पूछती हूँ ना, तो if you say yes, no, and don't be so sure unless you have a backing of it. Now, coming to my question again, before anybody else gets confused, let me just quote the hadith. This is the hadith of Bukhari, which says, it was narrated from Abu Hurairah that the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, when a man sits between the four parts, which is arms and legs of his wife, and has intercourse with her, then ghusl is obligatory, even if he does not ejaculate. So, agar ye touching ho jati hai, even for the foreplay purposes, okay? Even for the foreplay purposes, then ghusl lazim hai. The ghusl does not depend on the emission of mani. Mani means semen, huh? The last stage.
बल्कि if the tip disappears inside the vagina, ghusl becomes obligatory. And there is no difference in opinion. The consensus opinion is this. इसलिए मैंने ये हदीस actually लेना important समझा, because as far as the part of ghusl and intercourse and things like that, janaba की state है, so it was important to understand. Because when I had read this for the first time, it was very new for me. I was under the impression until and unless ejaculation doesn't happen, emission nahi hota, tab tak ke you are still okay. But this clarifies very clearly that even in the case of these parts touching each other during the foreplay, or just as it is, without the emission of mani, then mani is semen, by the way, again I repeat, so ghusl is important. ठीक है? Are we clear on this? Yes. Okay. हाँ जी बताएं, और कोई क्वेश्चन है इसके ऊपर? I think there is something coming up. अगर इसके रिलेटेड और भी कुछ अगर हुआ तो आप बेशक अगर प्राइवेट पे विंडो पे करना चाहते हो तो कर लें, बट दिस इज एज आई टोल्ड यू अर्लियर, दिस इज एन एजुकेशनल क्लास. वी नीड टू डिस्कस एंड वी नीड टू नो व्हाट वी आर सपोज्ड टू नो. एंड इवन इफ सम यंग गर्ल्स हु आर अबाउट टू गेट मैरिड, they also can update themselves from this knowledge rather than being in a state of janaba and impurity. It is better to know the facts and act accordingly. ठीक है ना? बाजी, can I ask one question? Sure, please go ahead. जी बाजी, प्रेगनेंसी में जो वाटर लीक होता है ना, वो लास्ट स्टेज में होता है. ओके, अगर वो पहले ही हो रहा है, मतलब थोड़ा थोड़ा करके निकल रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो ऐसी हालत में नमाज पढ़ सकते बाजी? देखो, जब तक तुम्हारा है या फिर सी जब तक तुम्हारा वाटर बैग, अभी अगेन इज इट द फुल टर्म प्रेगनेंसी, एंड देन जब तक कि तुम्हारा वो जो एमनियोटिक फ्लूइड निकल के जब वो वाली फ्लूइड नहीं निकलता, तब तक कि तुम्हारा इट इज कंसिडर्ड एज डिस्चार्ज ओनली. ओके, तो अगर आपका वो डिस्चार्ज चल रहा है, बिकॉज नॉर्मली ड्यूरिंग द सेकेंड एंड द थर्ड ट्राइमेस्टर्स डिस्चार्जेस होती हैं, वैरायटी ऑफ डिस्चार्जेस होती हैं, ठीक है, बिकॉज ऑफ द प्रेशर ऑफ द बेबी ऑन द यूट्रस एंड द ब्लैडर एंड एवरीथिंग, तो वो डिस्चार्जेस आर नॉर्मल. बट कौन सी वाली डिस्चार्ज इज कंसिडर्ड एज नजासा इज व्हेन द वाटर ब्रेक्स, व्हेन द एमनियोटिक फ्लूइड विल स्टार्ट एमिटिंग. तब तक के आप यू आर अलाउड टू प्रे. जब वो ब्लड की स्ट्रैंड आने शुरू हो गई, एंड यू कैन लिटरली फील इट दैट दिस इज कमिंग फ्रॉम द प्लेसेंटा फ्लूइड है, तब जाके वो आपका नजासा वाला पीरियड शुरू हो जाएगा. वरना तब तक के जो उसके प्रायर टू ब्रेकेजेस ऑफ द वाटर बैग, यू आर इन अ स्टेट ऑफ प्यूरिटी. ठीक है? मींस नो नीड टू टेक गुस्ल. ओके, या प्रेगनेंसी में मतलब आप वैसे भी आपको यानी वो पीरियड वाला तो हो ही नहीं रहा ना कुछ चक्कर. We are talking about the discharges, right? White discharges that happens in the pregnancy when you are having this white fluid, right? No, not discharge बाजी. Water leaking जो end में होता है, water leak, वो वाला. Before the delivery? Yes, before the delivery. You are talking about the 9th month? Yes. हाँ, तो 9th month में जब water आ गया तो खलास, then it is वो नजासा हो गई ना, फिर तो it's about time you will deliver, right? ओके, ऐसी किसी की कंडीशन है कि 9th मंथ हुआ ही नहीं है, 7th मंथ में उनको वाटर लीक हो रहा है, वो अभी हॉस्पिटल में एडमिट है, तो क्या उनको गुस्ल लेना चाहिए और प्रेयर नमाज भी पढ़नी चाहिए? नहीं, देखें, अगर वो 7th मंथ में, बिकॉज मेनी अ टाइम्स दिस थिंग हैपेंस ड्यूरिंग द 7th मंथ और 9th मंथ, तो 7th मंथ में अगर उनको हॉस्पिटलाइज कर दिया, व्हिच मींस शी इज लीकिंग हर एमनियोटिक फ्लूइड, तो इफ दैट इज द केस, देन डेफिनेटली इट इज अ स्टेट ऑफ नजासा, शी कैन नॉट प्रे. उसका वो फ्लूइड निकलना शुरू हो चुका है. ओके, बट अगेन आई एम सेइंग इट डिपेंड्स कि कौन सा वाला फ्लूइड निकल रहा है, उसको डिस्टिंग्विश करना बहुत जरूरी है. तो शी हैज टू डू द स्कैन्स एंड थिंग्स लाइक दैट एंड देन एस्टैब्लिश वेदर दिस इज फ्रॉम द बैग और फ्रॉम आउटसाइड. इफ इट इज फ्रॉम आउटसाइड, देन इट इज प्योर. इफ इट इज फ्रॉम इनसाइड, देन इट इज इम्प्योर. ओके बाजी, इट्स क्लियर. ओके बाजी, स्कैन के बाद गुस्ल करने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज आप स्कैन के वक्त आपका कोई एमिशन नहीं हो रहा है. इट इज अ नॉर्मल प्रोसीजर, राइट? ओनली इफ आप जब वो जो ऑर्गेजम वाली स्टेज में जाते हो, जब आपकी फ्लूइड, द मनी, द फाइनल फ्लूइड जो होता है ना ऑर्गेजम वाला, जब वो एमिट होता है, तभी ही आपको गुस्ल करना है.
ओके ये अभी किसी ने क्वेश्चन डाला है अबाउट द ट्रांसवेजिनल स्कैन. ओके इसमें आपको गुस्ल की जरूरत नहीं है. आई मीन दैट वे इट इज जस्ट स्कैनिंग. It is just scanning. You use the lubricant and it's the usual fluid. Okay, general fluid है वो. उसमें कोई भी नजासा वाला मैटर नहीं है. Right? जो amniotic fluid जो होता है ये impure होता है बाजी. ये जो वाटर बैग रहता है ना, जैसे अभी बेबी जिसके अंदर हमारे वाटर बैग जो है अंदर प्लासेंटा एंड ऑल दैट यूट्रस के अंदर, जब वो लीकेज होता है, वाटर ब्रेक हो जाता है एंड फ्लूइड एंड ब्लड एंड ऑल दैट आना शुरू होता है, फिर हमारी जो वो निफास वाली स्टेज है वो शुरू हो जाती है. ओके उसके प्रायर टू दैट जब ब्रेकेज नहीं है, नॉर्मल डिस्चार्जेस हो रहे हैं, देन इट इज ऑल राइट. ओके क्लियर. ठीक है. ओके आर वी डन विद दिस क्वेश्चंस? कैन वी प्रोसीड? Yes, Baji. All right. Go ahead. Where the recommended, when is ghusl recommended and not recommended? We discussed this. जो 3-4 हमारे points थे, and then when okay. Menstruation and post-child bleeding. There are 3 types of vaginal bleeding basically. एक menstruation, एक defective, एक post-child bleeding. तो menstruation में definitely you have to, जैसे ही आप पाक हो जाते हैं, आपकी bleeding खत्म हो गई, वो जो light brownish strand आना भी बंद, and you are clear, you take bath immediately. Post-child birth, not necessary कि हम 40 days रुकें. काफी सारे ये मिसकंसेप्शंस थे कि 40 दिन तक रुकना है. भले 20 दिन में फीमेल can you hear me? I think somebody is saying you can't hear. Hello? आ रही मेरी आवाज? Hello? I think so. सिर्फ मुझे एक ही आ रही है, किसी को नहीं आ रही है. Can you hear me now, guys? Please. Maybe they can't unmute, Baji. बीच में मिस हो रही है, कट हो रही है. बीच में कट हो रही है. मैं रिपीट करती हूँ. मैं दोबारा से पॉइंट रिपीट करती हूँ कि मेंस्ट्रुएशन एंड पोस्ट चाइल्ड ब्लीडिंग ये जो है 3 टाइप्स की है. एक मेंस्ट्रुएशन है, एक डिफेक्टिव ब्लीडिंग है जो इस्तेहाजा है, एक पोस्ट चाइल्ड ब्लीडिंग है. जिसमें से मेंस्ट्रुएशन जो है, मेंस्ट्रुएशन डेफिनेटली आपको गुस्ल लेना है as soon as the bleeding stops. उसके बाद पोस्ट चाइल्ड ब्लीडिंग में, पोस्ट निफास जो है उसमें you don't have to wait till 40 days. That is the maximum cap. यानी 40 days तक. I don't know, मेरा एक्सपीरियंस विद माय पीपल अराउंड मी यही रहा है कि किसी की 40 days तक रहती नहीं है. 20, 25, 30 days तक खत्म हो जाती है ब्लीडिंग, पोस्ट चाइल्ड बर्थ ब्लीडिंग. तो जैसे ही वो खत्म हो जाती है उसके बाद से फिर आप पाक होके यू कंटिन्यू योर इबादा. ठीक है. और इस्तेहाजा इज अ कंडीशन वेयर इट इज अ सिकनेस, तो उसमें कोई मसला नहीं है. वी जस्ट हैव टू रिपीट द wudu before every salah. So that's the way it is. Clear hai? नसरीन, I have a question. Sure. अब कभी ऐसे भी होता है कि Maliha, be little louder please. 40 days में आप हाँ जी 40 days के बाद शुरू हो जाता है. What about that? बीच में blank हो गया था मलिहा. Can you repeat again? Hello? Hello? I'm not getting any. Do you want to type your question? I'm not able to hear. Oh, I'm lost completely. क्या हो रहा है नेट को? Hello? Hello, Maliha? किधर? Bring it here, please. Yes, Saima. They can't hear you, Baji. Maybe. मुझे भी नहीं समझ आई एक्चुअली. डिड एनीबडी गेट हर क्वेश्चन? तो प्लीज मुझे रिपीट करें या टाइप करें. हेलो. I can't hear you. I can't hear you बोल रहे सारे. ओए नसरीन, एक क्वेश्चन है. वो क्वेश्चन ये है कि यू टॉक्ड अबाउट, हेलो, या ओके,
अक्सर मियाँ बीवी जब एक दूसरे के साथ होते हैं एंड दे डू द फोरप्ले एंड आदमी के लिए गुस्ल जरूरी है, तो व्हाट अबाउट औरत? नहीं, आदमी, आई कांट हियर यू, आदमी के लिए गुस्ल जरूरी है, राइट? ही विल टेक द गुस्ल. व्हाट अबाउट द फीमेल? if he is ejaculating, no, he is not ejaculating. let's suppose किया, छोड़ दिया, कुछ नहीं किया, तो वो गुस्ल करेगा ना, राइट? आदमी विल डू द गुस्ल, राइट? नहीं, सी अगेन हमारी कंडीशन क्या थी? कंडीशंस ये थी कि ईदर वन ऑफ द पार्टीज, यानी दोनों पार्टीज में से दोनों भी अगर वो इजैकुलेट करती हैं, देयर इज अ फ्लूइड एमिटिंग, देन यस. और वो भी कौन सा वाला फ्लूइड? जो ऑर्गेज्म के बाद वाला है, द फाइनल मनी. ओके, इट इज कॉल्ड मनी. तो वो वाली फ्लूइड अगर एमिट हुई तो. नंबर 2 कंडीशन, even if there is a foreplay happening and the two private parts meet, so both will do the ghusl. Yes, both will do the ghusl based on that hadith. Yes, based on the consensus. Yes. हुआ clear? जी बाजी, मैंने जो अभी सवाल पूछी थी ना आपको वाटर लीकेज का, तो ऐसी हालत में कुरान तो नहीं टच कर सकते हैं ना? तो अगेन क्या कहते हैं, मैंने आपको बताया ना नाजिया, वो फ्लूइड कौन सा है ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. अगर उसका वाटर बैग का फ्लूइड लीक हो रहा है तो वो तहारा की कंडीशन नहीं है, निफास की कंडीशन है. अगर वो आउटसाइड द बैग अगर लीक हो रहा है, नॉर्मल डिस्चार्ज है, देन इट इज ओके. फिर उसमें शी इज पाक, शी कैन प्रे, शी कैन टच कुरान, डू एवरीथिंग, बट यू हैव टू डिस्टिंग्विश, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. ओके बाजी, वो अनलेस यू आर नॉट श्योर, जहां तक आप मुझे बता रही हो अल्लाह आलम, लेकिन इफ शी इज एडमिटेड मे बी शी इज लीकिंग द एमनियोटिक फ्लूइड. यस या वही वाला है. हाँ, तो फिर वो प्रॉब्लम है कि शी इज नॉट प्योर देन. ओके, या वो सवाल कर रहे हैं, वो उन्होंने ग्रुप में भी डाले हैं आज, वो भी ज्वाइन है, तो वो पूछ रहे कि हम फोन में पढ़ सकते हैं क्या? देखो, कुरानिक वर्सेस व्हेन यू आर इन अ स्टेट ऑफ क्या बोलते हैं, इम्प्योरिटी, यू आर नॉट सपोज टू रिसाइट कुरान. बल्कि इसमें बहुत सारी डिस्कशंस भी हुई है हमारी कि इवन फ्रॉम द मेमोरी यू कैन नॉट, एंड ये और वो. तो आप जो है यानी यू आर नॉट टचिंग द टेक्स्ट, राइट? फ्रॉम द फोन यू आर लिसनिंग or you are reading from the phone itself without touching the text, then you can do it. But if you are in a state of janaba, you can absolutely not recite Quran even from your memory. Okay. फर्क समझ लें, फर्क. जी हाँ. Yes. क्योंकि वो कई सारे सवाल आते हैं माइंड में. हाँ, नहीं, अब जितने आते हैं आप करें, मैं कहती हूँ अनगिनत करें, कोई मुश्किल नहीं है. वी हैव लॉट ऑफ, हम लोग खुद जाके उसको आप ग्रुप में डालें, वी कैन डू अवर रिसर्च, वी कैन फाइंड आउट एंड एस्टैब्लिश थिंग्स, बिकॉज अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ है हमारे पास, एवरीथिंग इज देयर. और अगर नहीं है तो वी कैन डिग इन एंड वी कैन गो टू द डेप्थ, हम और ज्यादा उस पे वो करेंगे, जूम इन करेंगे. दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. मलिहा, यू हैड अ क्वेश्चन, सॉरी वी लॉस्ट यू इन बिटवीन. जी उनका सवाल, मलिहा यू देयर? डिड एनीबडी हियर हर क्वेश्चन? उन्होंने क्या कहा था? हेलो, एम आई ऑन? हेलो, हेलो, हेलो. यस बाजी. हाँ जी, आई थिंक आज नेटवर्क थोड़ा इशू दे रहा है बहुत. जी. Is Maliha there or she left? Yes. Okay, Maliha, your question. जी साइमा बोलें. नसीम, मेरे ज़हन में क्वेश्चन था, इट्स नॉट रिलेटेड टू द टॉपिक, बट लेट्स सपोज जब हम अक्सर गुस्ल करके या नहा के निकलते हैं, सम ऑफ द फीमेल्स आर लिविंग अलोन, दे डोंट हैव किड्स वगैरह, इफ दे आर इन द बेदिंग रोब, या हम वुदू करके निकल रहे हैं, या यू आर इन द टॉवल, तो हम जो दुआ पढ़ते हैं वुदू की,
आफ्टर कमिंग आउट ऑफ द वॉशरूम, या तो क्या वो पढ़ी जा सकती है कि नहीं? हाँ, क्यों नहीं पढ़ी जा सकती है, पढ़ी जा सकती है. यू आर Even स्टिल if you are in the towel as well? हाँ, यस ऑफ कोर्स, क्यों नहीं, क्यों नहीं. अभी आप, मैं एक और एक सवाल, बिकॉज समथिंग सिमिलर हैपेंड, लाइक फॉर एग्जांपल फीमेल्स हु आर डिलीवरिंग किड्स इन द स्टेट ऑफ लेबर, अब वो अपनी दुआएं और अपने अल्लाह को याद कर रही हैं. विल यू नॉट बी, यानी अभी आप, यू आर नॉट कवर्ड ऑनेस्टली, आप सिर्फ अपर बॉडी आपकी कवर्ड है, बाकी सारा कुछ ओपन है, but you are still reciting and you are in the state of trance and pain and things like that. You are remembering your Allah. So will you? वो तो माशाल्लाह इट्स एक ट्रू, वो तो एक आप ऐसा काम करो जिसका अजर ही बहुत है, उस पेन का नहीं, बहुत मतलब my point that I'm trying to mention here is कि ऐसा कोई जरूरी नहीं. अभी जैसे हम रेगुलर जो हमारी स्टेट होती है, फॉर एग्जांपल अभी तुम्हारी जो ये तुमने बताया, नहाकर आप निकले, आपने टॉवल पहना, of course you will say your dua. Not necessary you have to cover completely and then sit and make your duas. Not like that. ये तो आपका चलते फिरते, because जिक्र में आपकी जबान होनी है, तो उसमें आप कंटिन्यूसली कर रहे हैं. यू आर नॉट इन अ प्लेस लाइक बाथरूम में नहीं हो आप बस उसका आपको ख्याल रखना है. बाहर आप आ गए हो, अच्छा, आप दुआ पढ़ो. एक और चीज, जब आप वॉशरूम में अक्सर बैठे होते हैं, अजान हो रही होती है, सो यू आर इन हैबिट ऑफ कि आपका दिल ऑब्वियसली जब वो रसूलुल्लाह बोलता है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते हो, या अनइंटेंशनली आप जब छींक मारते हो आपका दिल अल्हम्दुलिल्लाह निकलता है. सो इसमें क्या करे बंदा? यू हैव टू नॉट अटर इट फ्रॉम योर माउथ. आपका दिल के अंदर चालू है हरकत, जो यू कांट स्टॉप इट, राइट. हमारी ना एक आंख होती है दिल के अंदर, एक जबान होती है दिल के अंदर, एक कान होता है दिल के अंदर, उसको हम स्टॉप नहीं कर सकते. इट इज आउट ऑफ अवर कंट्रोल. तो वो कंटिन्यूसली चलता है, बट हमारी कोशिश ये, या जिसमें हमारी मनाएगी है कि द वर्ड्स शुडंट अटर फ्रॉम योर माउथ. तो आप जल्दी से फारिग होके मेक श्योर यू कम आउट एंड कंटिन्यू. देन उधर बैठ के कॉन्शियसली जवाब देना नहीं है, ऑफ कोर्स नॉट. आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली अ सिनेरियो व्हिच इज नॉट इन योर हैंड्स. ओके, वन मोर थिंग, सॉरी मैं टॉपिक से नहीं, प्लीज, इट्स ओके. अक्सर यू आर सिटिंग ऑन, यू आर इन द वॉशरूम और बाहर से किसी को वक्ता पड़ा हुआ है, यू हैव टू आंसर, तो आप जल्दी से बोल के जल्दी से जवाब पढ़ सकते हो. बाथरूम में कौन सी दुआ पढ़नी है बीबी? नहीं, वो वॉशरूम जाने की अल्लाह नहीं, यू ऐसे आप वॉशरूम घुसते नहीं, पीछे से सवाल पहला, ओ यार वो किधर है, तो बंदा ऐसी सूरत में क्या करे? नहीं, अंदर जाके नहीं पढ़ना है, अंदर जाके नहीं पढ़ना है. बट अगेन, अगर आप फॉर एग्जांपल यू मिस्ड इट, एक ऐसी सिचुएशन है कि यू मिस्ड सेइंग द दुआ एंड यू एंटर्ड एंड यू रियलाइज्ड एंड इन योर हार्ट अगेन यू आर सेइंग इट, देन अगेन आई से मनाई मुंह से बोलने के लिए है, लेकिन इट इज अगेन रिकमेंडेड एक्ट कि आप बिफोर एंटरिंग आप दुआ पढ़ लें. सो कुछ ना कुछ, दैट्स व्हाई आई कीप सेइंग सिचुएशन होती है. इस काइंड ऑफ सिचुएशन में अल्लाह नोज बेस्ट, ऑफ कोर्स वो गफूरुर रहीम है, लेकिन हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि व्हाट इज रिकमेंडेड एंड हाउ इट इज सपोज्ड टू बी डन, वैसे ही हम लोग करें. बाकी मैं यही कहूंगी कि इस्तगफार की अपनी कसरत करते रहें. अल्लाह ताला ये ऐसी हमारी जो स्टेप बाय स्टेप जो हम लोगों से गफलतें हो जाती हैं, मे अल्लाह फॉरगिव अस, लेकिन वी स्टिल हैव टू डू व्हाट इज द राइट थिंग एंड व्हाट इज रिकमेंडेड. वो हमारी कोशिश होनी चाहिए. अच्छा, मैं जस्ट एक रिमाइंडर के तौर से पूछना चाह रही हूँ, आई नो वी आर अबाउट 6 मिनट्स, लेकिन आप लोग मॉर्निंग इवनिंग अस्कार कर रहे हैं? Yes. Please continue doing that as much as possible. Mashallah, we are approaching Ramadan. Do you guys want to continue during Ramadan? और क्या आप लोगों का इरादा है? टाइम वी हैव टू चेंज, बिकॉज ये तरावियों का और वो हो जाएगा, बिकॉज फौरन नमाज के बाद आप नमाज पढ़ के फारिग होते हो तो फौरन फिर तरावियां पढ़नी होंगी, तो 8 बजे विल नॉट बी सूटेबल एट ऑल. या वैसे अभी भी यानी आई हैव नॉट प्रेड माय इशा एंड आई हैव कंटिन्यूड हियर क्योंकि लेट होते जा रहा है टाइम. तो व्हाट इज द रिकमेंडेड टाइम डू यू थिंक? मॉर्निंग, I think 9 to 10 is better. हाँ, लेट मॉर्निंग में अगर आप कर लो अराउंड 10 to 11 या 11 to 12, दैट विल बी अ बेटर टाइम. और इंटरनेट का भी इशू नहीं होता है, और वैसे भी कर्फ्यू आज बढ़ा दिया उन्होंने 4 PM till 7 AM. नहीं, 8 PM to 9 AM हो जाने वाला है रमजान में कर्फ्यू. नहीं, अभी जो रिसेंट खबर आई है वो 4 PM to 7 AM हो गया है आफ्टर जोहर प्रेयर्स. अच्छा, एक काम करें आप लोग एक काम करें प्लीज, ग्रुप में जो है टाइमिंग रेकमेंडेड डाले. वी विल सी कि कितना मैक्सिमम का क्या ओपिनियन है, फिर इंशाल्लाह हम लोग उस पे डिसाइड करते हैं. क्योंकि नसरीन, द रीजन इज बिकॉज अगर हम जोहर से पहले करते हैं ना, दैट विल बी अराउंड 12, या वो उससे फायदा ये कि तब ट्रैफिक नहीं होता, इंटरनेट पे इतना रश नहीं होता, तो आपका कनेक्शन का इतना प्रॉब्लम नहीं होता. बिकॉज हमारा जो कुरान रेसिटेशन का ग्रुप है उसमें इंटरनेट इतना इशू नहीं करता जितना आफ्टर असर प्रॉब्लम करता है. तो एक काम करते हैं, 11 to 12 कैसा रहेगा? इज एवरीबडी ओके विद दैट?
Can we have We can 11 do to 12 12? सुबह में जो वो कई सारे लोग कुरान की ट्रांसलेशन की क्लास में हैं, तो इसीलिए बोल रहे कि तो 11 बजे आप लोग उधर हैं, दौरा कुरान में हैं? यस। Okay. We can do 1 to 2. 1 to 2. 1 to 2 करना है? Okay. 1 to 2 p.m. is okay? इंशाल्लाह। आपको क्या मुनासिब है बाजी? आप भी फ्री होना चाहिए ना, कौन से टाइम पे फ्री इंशाल्लाह हो गए? करेंगे, एडजस्ट करेंगे इंशाल्लाह ताला, कुछ करेंगे। तो 1 to 2 p.m. अगर सबके लिए फिजिबल है तो करेंगे इंशाल्लाह यार, ठीक है? ओके इंशाल्लाह वी विल कंटिन्यू। और सवाल जो रहेंगे प्लीज ग्रुप में डालें ताकि लेट अस डिस्कस, एंड आई होप हमारे जो भी वो मिसकंसेप्शंस थे अल्लाह ताला उसको क्लियर करे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। होती है फिर इंशाल्लाह कल मुलाकात। ओके, टेक केयर जी, अस्सलाम वालेकुम।